Good morning, students. Today is my sixth lecture of 10th science, and my today's topic is image formation by convex mirror. So, images formed by convex mirror. We have already studied how the images are formed by concave mirror, and the concave mirror forms about six types of images, and most of the cases the images formed by the concave mirror are real. But here we will going to study or learn about something new. That means the convex mirror is a spherical mirror which is polished from the surface which is curved in. This is polished surface, and this one is reflecting surface. Okay. This mirror, which is called convex mirror, form two types of images, and it always form virtual image. Suppose this is our principal axis. This is principal axis, and this is the pole of the mirror. Pole of the mirror is a point almost at the center of the mirror through which principal axis passes. And the first case is when object is at infinity, or we can say, or when the object is at a considerable distance from the mirror, मतलब थोड़ा दूर होगा, ठीक है? तो from there almost the incident rays, suppose this is incident ray 1 and this one is second incident ray, this one is incident ray 2. हम तीसरी इंसिडेंट रे ड्रा कर सकते हैं, हम जितने चाहें उतने कर सकते हैं, बट हमें ज्यादा से ज्यादा रेस दो ही ड्रा करेंगे, तब भी हमारा पास पता लग जाता है कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है. सो दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस. ओके, नाउ द कन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर. Diverging mirror means when the incident rays fall on this convex mirror, they get reflected, or we can say they are diverged and comes into the same media, but with respect to the principal focus. Suppose हमने ये जो ड्रा किया है convex mirror, okay? Suppose it is a part of a sphere whose center is this. Suppose this is center of curvature. हम ऐसा तो ड्रा नहीं करेंगे, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम ये मानेंगे कि दिस आर्क हैज ए सेंटर which is called center of curvature. Since it is lying behind the mirror, so the convex mirror has virtual center of curvature and it also has virtual principal focus. तो हम ये देखेंगे कि suppose this is principal focus, तो हम with respect to this principal focus, ये जो principal focus है इसी लाइन में ये जो है वापस हो जाएगी. जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे, आप स्केल रखोगे और स्केल में इन दोनों पॉइंट को अलाइन करोगे एक साइड, और फिर इसको आगे प्रोड्यूस करोगे, तो एग्जैक्टली आपका रहेगा. ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसे रे होती है, सपोज ये रे ऐसे करते हैं, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस का है फोकस, चाहे यहाँ हो, यहाँ फोकस था, यहाँ कर्वेचर था, वो यहाँ से बस मिला देते हैं, तो ये रे नहीं बनेगी. आपको जो ये रे है, यू हैव टू प्रोड्यूस इट अलोंग, मतलब इसी लाइन पे आपने इसको प्रोड्यूस करना है. ये वाली रे ऐसे नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखेंगे. और आप देखोगे कि जब ये आप देखिए यहाँ पे इस रे में भी डाइवर्ज होना है, ये कहाँ जाएगी? सपोज हमारे पास प्रिंसिपल फोकस ये है, तो ये इसकी लाइन में सीधा जो है इस तरह से ये
इस डायरेक्शन में जाएगी। So this is reflected ray 2, this is reflected ray 1. तो अगर हम इनको प्रोड्यूस करेंगे फर्दर, if we produce them further, there will be the no chance of meeting these two reflected rays in real manner. So यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें देखेंगे if we produce these reflected rays behind and if they appears to originate from a point which is lying on the principal axis and this point is called principal focus. और इसीलिए हम principal focus कहते हैं। तो यहाँ पे जो इमेज बनती है, this is the position of image, position of image। और यहाँ पे जो रे होंगी, हम ऑब्जेक्ट को तो नहीं दिखाते इसमें, why? Because the object is far away from the mirror, और इसलिए हम इसको ज्यादातर दिखाते नहीं हैं। हम ये दिखाते हैं कि बहुत दूर से जो इंसिडेंट रे आ रहे हैं, they lie almost parallel to the principal axis। तो सो हम इसको क्या करेंगे, the image is formed at principal focus, focus at principal focus, ठीक है। The nature of the image कैसी होगी, will be erect होगी, virtual होगी and highly diminished। highly diminished का मतलब very very small as compared to the size of the object, ठीक है। तो हम ये बताएंगे वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी एंड हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से, इसका मतलब क्या है कि हमारा कनकेव कन्वेक्स मिरर है, इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। तो साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। नाउ आई कम अप टू द सेकंड स्टेज, ये सेकंड टाइप ऑफ इमेज फॉर्मिंग बाय द दिस कन्वेक्स मिरर। हम बोलते हैं when the object is, second है when the object is lying in front of a convex mirror। convex mirror के कहाँ होगा, in front होगा। तो in front का मतलब क्या होगा कि सामने होगा। suppose हमारे पास this is our convex mirror, it is polished from behind and this is the principal axis। principal axis ये है, okay। this is the pole, यहाँ पे हमारा pole है and हम ये बताएंगे कि suppose this is the position of object, this is the position of object। suppose जब क्या होगा, रूल्स को आपने वही फॉलो करना जो मैंने 4 रूल बताए थे। suppose this is the center of curvature and in the middle of this P and C एक another point, suppose principal focus जो है यहाँ पे प्रेजेंट है इस C और P के बीच में। P का पॉइंट एक्चुअली यहाँ है, this is the P, ओके। तो मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले जो इंसिडेंट रे 1 है वो जाएगी पैरेलली ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जब पैरेलली जाएगी तो कहाँ से ये हो जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस। हम क्या करेंगे, आपने स्केल से ये लाइन लगाएंगे, कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस। एंड आफ्टर दैट ये जो है सीधा जो है यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे 1। एंड इन सेकंड केस आपने क्या करना है कि आपका स्केल यहाँ होना चाहिए एंड दूसरी वाली साइड ये 2 पॉइंट लेके चलने हैं। बट रिमेंबर दैट जब भी आप इस मिरर से पीछे जो ड्रा करोगे वो हमेशा डॉटेड लाइन ड्रा करोगे, इसके आगे जो करोगे वो सॉलिड लाइन ड्रा करोगे। रीजन क्या है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके, ठीक है, ये कभी भी रेज को अंदर नहीं जाने देगा। बट इमेजिनरी हमारे ये है, इमेजिनेशन ये है कि अगर ये विद रिस्पेक्ट टू द कर्वेचर जाती है तो वो उसका कहाँ होना चाहिए, जैसे सपोज मैं आपको यहाँ से ये ऐसे बता रहा हूँ यहाँ तक, और इसके पीछे जो है हम इसको क्या करेंगे, वी विल ड्रा इट इमेजिनरी। सो दिस इज डॉटेड लाइन, ओके। मैंने ये बताया था कि कर्वेचर विद रिस्पेक्ट टू कर्वेचर फॉलो करेगी और इसी रास्ते जो है वो वापस आती है रे, दिस इज द रूल, ठीक। तो जब यहाँ से वापस आएगी तो ये कहाँ आ जाएगी, दिस वे, यहाँ पे चले जाएगी। और रियल में देखोगे कि एक रे यहाँ पे पड़ी, ठीक है, दिस इज सपोज
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस 1, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस 2, तो यहाँ से जब रिफ्लेक्टेड रे ये दो बन रही है तो रियल में ये कभी भी इंटरसेक्ट करेगी नहीं। लेकिन जब हम इनको पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये जो है इमेज बनेगी। दिस इज सपोज ए बी अगर इसका नाम है, इसका हम क्या रख देंगे, ए डैश बी डैश। ओके, तो हमेशा जो है बिहाइंड द मिरर ही इमेज बनती है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर, क्या बोलेंगे, द इमेज इज फॉर्म्ड behind the mirror। कहां पे बनेगी, इमेज है मिरर के बैक साइड बनेगी, ठीक है। हम लिखेंगे इट will be small in size। कैसी होगी, small in size as that of the object size। ऑब्जेक्ट्स के साइज से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। इट विल बी इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या हुआ, सीधी होगी, ठीक है। इरेक्ट एंड रियल और सॉरी वर्चुअल। इरेक्ट होगी और क्या होगी, वर्चुअल। ऑलवेज वर्चुअल ही होती है इसके केस में, ठीक है। तो हम इस तरह से हम बताएंगे हाउ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स इमेजेस। ओके, तो कन्वेक्स मिरर में इमेजेस हमेशा छोटे साइज की बनती है और वर्चुअल बनती है, ये हमेशा याद रखना। ओके, इसका मतलब क्या होगा, आप इसको जैसे याद रखें मुझे कि कन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट का नेगेटिव ही होता है हर केस में, ठीक। और इमेज का डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, इमेज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, याद रखना। उसका जो फोकस होता है वो भी पॉजिटिव होता है, लेकिन वर्चुअल फोकस होता है, और उस केस में कनकेव मिरर के केस में रियल फोकस होता है। यही डिफरेंसेस हैं वहां, ठीक है। तो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन का मैंने आपको बताया कि किस तरह से इमेजेस जो है कन्वेक्स मिरर जो है हमारे पास बनाता है। दो ही तरह के इमेजेस जो है कन्वेक्स मिरर बनाता है, और जहां पे भी मेजर ऑब्जेक्ट रखो हमेशा इमेज हमेशा छोटी ही बनेगी। और कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। इसका आपने थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास क्या है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को हम कहां यूज करते हैं। पहला यूज है इन सर्च लाइट्स, ठीक है। सर्च लाइट जैसे आर्मी वालों के पास होती है लाइट्स, बड़ी बड़ी लाइट होती है, वो इतना ज्यादा फोकस उनका होता है, क्यों, सर्च लाइट्स के लिए, क्यों, बिकॉज हमारे पास जो टॉर्च है, देखो ये सपोज इसका मिरर है और ये सपोज हमारे पास टॉर्च है, और यहाँ पे आपने देखा होगा ये इस तरह से एक बाउल होती है और यहाँ पे ये बल्ब होता है, ठीक है। तो जब बल्ब ग्लो करता है तो ये कुछ रेज ऐसे फेंकता है, ठीक है, और कुछ रेज ऐसे फेंकता है, फिर वहां से पैरेलल जाती है, ये ऐसे फेंकने पैरेलल रेज जाती है, ठीक है। और ये पैरेलल बीम ऑफ रेज जो दूर तक जो एक फोकस लाइट जो है देता है, इसलिए सर्च लाइट्स में ये इस्तेमाल होता है। इसमें आप लिखोगे कि एज शेविंग मिरर क्यों किया जाता है, क्योंकि कनकेव मिरर में हमारे जो इमेज है वो काफी ज्यादा बड़ी मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, ठीक है। जब हम कहाँ होंगे, हम फोकस और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो वहां पे बहुत ज्यादा बड़ी इमेज बनाता है वो। और शेविंग मिरर में इसलिए हम काम करते हैं क्योंकि हमारे मुंह, फेस पे छोटे छोटे पिंपल्स हो सकते हैं, ताकि वहां से कट लगने से हम बच सके। इसलिए शेविंग मिरर जो है, शेविंग मिरर में वो पिंपल्स बड़े बड़े दिखेंगे, और हम जब भी ब्लेड चलाएंगे तो वो थोड़ा ध्यान से चलाएंगे कि यार इसमें जो है कट ना लग जाए। दैट इज व्हाई जो शेविंग मिरर यूज किया जाता है। थर्ड है जो है टू व्यू टीथ बाय डेंटिस्ट लोग जो है वो क्या करते हैं, हमारे जो इस तरह से एक उनका इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इस तरह से, ये जो है इसके हैंड होते हैं, ये जो है मिरर होता है, ठीक है। इसमें कनकेव मिरर होता है, तो
एक्चुअली जो है दांत का साइज, हमारे टीथ का साइज जो छोटा होता है और डॉक्टर अंदर जाके नहीं देख सकता है, दैट इज व्हाई डॉक्टर क्या करता है, इसको हमारे मुंह में डालता है और मुंह से उसकी इमेज बना के तो बड़ा टीथ नजर आता है। तो सो दिस मिरर हेल्प्स डेंटिस्ट टू व्यू द कैरीज फ्रॉम क्लोज व्यू, ठीक है। जो डेंटल कैरीज वगैरह हैं या कैविटीज बन गई हैं उनको देखने में डेंटिस्ट जो है इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो कनकेव मिरर के हैं और भी जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। रियल इमेजेस जो है बनती है इसमें मैक्सिमम केसेस पे, तो हम बहुत एक्सपेरिमेंट एज ए लेबोरेटरी का टूल भी हम इसको लेते हैं कि जैसे फिजिक्स की लेबोरेटरी होती है वहाँ पे भी कनकेव मिरर होते हैं, हम उनसे भी जो है एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह करने में वो ये हेल्प देते हैं। तो बाकी आप देखोगे these are the use of concave mirrors, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि कन्वेक्स और सोलर कुकर में भी जो है सोलर बॉक्स होता है ना, सोलर बॉक्स जो वहां पे भी एज ए रिफ्लेक्टर जो है इसका यूज हम कर सकते हैं फोकस करने के लिए लाइट, ठीक है। बॉक्स टाइप सोलर कुकर में भी ये यूज होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। सबसे बड़ा यूज है जो है यूज्ड एज रेयर फील्ड व्यू मिरर, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे क्योंकि इमेज वर्चुअल बनाता है वो स्मॉल साइज में आता है, इसलिए हम लिखते हैं कि जो है ये रियल फील्ड व्यू, मतलब कि बहुत ज्यादा फील्ड जो है आप इससे देख सकते हो कन्वेक्स मिरर से, मतलब कि ज्यादा। और आपको ये भी बताऊंगे कि जैसे बाय द साइड ऑफ ड्राइवर्स सीट इन ऑटोमोबाइल्स, जो गाड़ियां होती है ना उनके गाड़ियों के जो है साइड पे, ड्राइवर के साइड पे एक शीशा लगा होता है, वो भी हमारे पास कन्वेक्स मिरर होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा लार्ज जो है व्यू ऑफ ट्रैफिक जो है कैन बी सीन जो है बाय द ड्राइवर देख सकता है उसमें, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा कन्वेक्स मिरर जो है शॉपिंग हॉल्स में लगाया जाता है, ठीक है। शॉपिंग हॉल्स या शॉपिंग मॉल्स में हम लगा जाते हैं, व्हाई? बिकॉज जो एक बहुत बड़ा मॉल होगा जो वहां पे जो एक ही बंदा जो है सभी को देख पाएगा अच्छी तरह से कि कितने लोग हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा व्यू कवर होता है, ठीक है। इसके बाद जो है एट हम लेंगे एट ब्लाइंड कर्व्स ऑफ हाईवेज, लिख सकते हो हाईवेज, ठीक है। जो ब्लाइंड कर्व होती है हाईवेज की वहां पे भी जो है कन्वेक्स मिरर लगाया जाता है ताकि ट्रैफिक जो है उस साइड की इसको अच्छी तरह से दिख पाए, तो वहां पे भी होता है जो है। इन टेलीस्कोप में इसका यूज होता है। तो देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो आपको 3-4 यूजेस जो है आपने करके रखना है, तो कोई ज्यादा इसका नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद टेलीस्कोप में भी आपको पता है मैग्निफिकेशन के लिए चाहिए, इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास में भी ये यूज किया जा सकता है, क्योंकि जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास बनाते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस बनाते हैं, तो वहां पे भी जो है या तो इस तरह से ये यूज हो सकता है, ठीक। तो लास्ट में लास्टली मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन और एंड जो है relationship between R and F. R is the radius of curvature. R क्या है? Radius of curvature. और F क्या है? Focal length. It is focal length. Okay. So हमारे पास ये जो क्वेश्चन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि R और F का रिलेशनशिप कैसे हम ड्रॉ करें। सपोज हमारे पास कनकेव मिरर है, ओके, दिस इज कनकेव मिरर एंड दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो हमारे पास सपोज व्हेन द लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज दिस इज सेंटर 1, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन सपोज यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये जो है यहाँ से पास हो जाएगी, तो यहाँ पे कौन सा होगा? प्रिंसिपल फोकस, ओके, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे 1, ओके। तो हमारे पास आपको ये पता है कि सपोज यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस 1 है, दिस इज पोल, हम लिखेंगे
सपोज एन इंसिडेंट रे, हम लिखेंगे ओ, लिखेंगे OP1, ठीक है, फॉल्स PARALLEL, पैरेलली, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस and fall on the reflecting surface of the concave mirror. कहां पे पड़ रहा है? concave mirror. then after its reflection होने के बाद कहां जाती है? It passes through principal focus. कहां पे जाती है? प्रिंसिपल फोकस का मतलब F, ठीक है, तो पास होने के बाद F से जाती है, ठीक है। हम लिखेंगे let us draw नॉर्मल, हम इसको लेंगे P1C, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। आपको पता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का नॉर्मल कहां होता है? नॉर्मल कर्वेचर पे ही बनता है, ये मैंने आपने पहले आप बताया। देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलता है? ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लिखेंगे, बट हम लिखेंगे सिंस OP1 पैरेलल टू CP, सपोज ये वाले लाइन ये इसके पैरेलल है, ठीक है, देन P1C क्या इज ए ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है? देखिए मैं यहाँ पे आपको सेपरेटली बताऊंगा। सपोज ये है हमारे पास O और P1, ठीक है, ये वाले रे, और ये वाला जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है, सपोज यहाँ पे C लगा देंगे, यहाँ पे B लगा देंगे, ये क्या है? यहाँ पे पैरेलल है, ओके। जब पैरेलल है, ये सपोज हमारा P1 पॉइंट है, तो यहाँ से जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करे तो हम उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। और ट्रांसवर्सल होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दे आर इक्वल टू, अगर ये एंगल आई है, ये भी एंगल आई होगा, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, देयरफॉर हम लेंगे एंगल जो OP1C जो है ना, वो होगा P1C और F हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज, ये दोनों एंगल किसके बारे में? एंगल आई क्यों है? अल्टरनेट एंगल्स हैं, ओके। अल्टरनेट एंगल्स समझ गए ना आप? ये जेड एंगल बोलते हैं, ये जैसे ये पैरेलल है और ये लाइन बीच में काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है। सो हम लेंगे, सो इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल देखने ले लीजिए, कौन सी? CP1F। सपोज कौन सी ट्राइंगल ले लेंगे हम? दिस इज, यहां से देख लेंगे आप यहां से, और ये इस तरह से, और इस तरह से ट्रायंगल बन रही है। यहां देख लीजिए, ये यहां पे C बना दूंगा मैं, ये P1 बना दूंगा और यहां पे F बना दूंगा, ओके। इसका एंगल है R और इसका एंगल कितना है समझो? I। यहां पे देख लीजिए, ठीक है। हम देखते हैं कि सिंस एंगल I और R क्या है? इक्वल है। इफ टू एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल, देन टू साइड्स ऑफ दैट ट्रायंगल विल आल्सो बी इक्वल। तो हम देखेंगे कि बिकॉज़ अगर ये ट्रायंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, then side opposite to these angles will also be equal, okay। तो इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है? P1F, ठीक है। हम लिखे P1F जो है किसके बराबर होगा? इसके वाले अपोजिट की साइड कौन सी है? ये P1F, और इस एंगल के अपोजिट वाली क्या है? CF। तो P1 ये जो है ये इक्वल है, ओके। हम क्यों लिखे? बिकॉज लिखा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स in a triangle are equal in length,
एक ट्रायंगल की साइड्स जो है इक्वल एंगल के अपोजिट होगी तो वो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, इसके आगे फिर देखो मैं बताता हूँ क्या है। नाउ आप देखेंगे कि हम एक बार when P1 lies very close देखो या नियर देखो, ठीक है, टू P। आप ये देखोगे सपोज P1 है ना, ये बिल्कुल यहाँ पे इसके नजदीक होगा। ठीक है, तो आपको मैं सपोज बताता हूँ कि सपोज ये P है, अगर हमारे पास पैरेलल रे बिल्कुल इसके साथ से गुजरे, बिल्कुल साफ पास से गुजरे, तो उसमें भी क्या करना है, उसमें फोकस से आना है। तो जब ये फोकस आएगी, सपोज यहाँ से यहाँ पर अगर फोकस है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही मैं बताता हूँ कि अगर P1 बिल्कुल पास में होगा उस समय में F से जितना P तक होगा F से उतना ही P1 तक के डिस्टेंस पे ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो हम लिखे देन हम क्या लिख सकते हैं, जब बिल्कुल क्लोज होगा तो मैं लूंगा F P1 जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होंगे F P के बराबर। तो मैं इसको लिखता हूँ दे विल बी रफली इक्वल लाइंस। ओके, तो हम लिखेंगे सिंस मैं लूंगा CP, C से लेकर P तक कितना है, CF प्लस FP, CF प्लस FP, समझ रहे हो ना, ये CP है। ओके, बीच में क्या है, F है, तो पूरा C से लेकर P तक कितना होगा, C से F प्लस F से P, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। तो हम ये मैं बताऊंगा CP जो आ जाएगा, देख लो यहाँ पे CF और FP दे देते, ये FP है ना, FP और ये तो बराबर है ना। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, CF जो है यहाँ पे F इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द CP, हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे FP प्लस FP होगा। ठीक है, तो हम CP लिख देंगे इज इक्वल टू FP। ओके, तो C से लेकर P तक डिस्टेंस होता है ना, जो इसको रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं CP की जगह क्या लिख दूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड 2 लिख दूंगा। F और P का डिस्टेंस जो प्रिंसिपल फोकस है, S का डिस्टेंस जो है वो क्या है, F होता है। क्या होता है, तो मैं इस FP की जगह क्या लिख दूंगा, F। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन F एंड R। हम इसको ये भी लिख सकते हैं R/2 इज इक्वल टू फोकल लेंथ। ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन R एंड F। तो आप सीधा सा जो है आप देखोगे, मैंने आपको सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये CF और FP जो है, CF की जगह FP मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ देखिए CF FP1 के बराबर था। ठीक है, और अगर FP1 के बराबर, FP1 किसके बराबर था, FP के बराबर था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है। तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो जो है दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, आप लिखो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन R एंड F। R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब जब फोकल इंसिडेंट का फोकल पॉइंट नजदीक होगा पोल के, एट दैट टाइम रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है विल बी ट्वाइस द फोकल लेंथ। ठीक, थैंक यू।